Good morning, dear students. So in the last few videos we have discussed about the order of reaction, and today we will discuss about some numericals related to the order of reactions. So your question number 1 is, identify the reaction order from the following rate constant. Means in this particular question we have been given the value of rate constant, and with the help of rate constant we are to find out the order of reaction. So how can we find out the order of reaction with the help of rate constant? By the unit of the rate constant, as we know that the unit of the rate constant depends on the order of reaction. For that, to calculate the unit of rate constant for a particular order, we have derived the general formula, if you remember, and the formula was mole per liter raised to the power 1 minus n time inverse. Here n is the order of reaction. So by comparing the unit to this general formula, we can calculate the order of a particular reaction. So in the first case, as we have been given the unit as second inverse, so we can compare this unit to this general formula. I may write over here as second inverse. Time को यहाँ second inverse ले लेती हूँ because here I have been given the second inverse as the unit of time. So it is equal to second inverse. इस फॉर्मूले में अगर हम ऑर्डर रखते तो ये इक्वल किसके आ जाता, सेकेंड इनवर्स के. सो नाउ वी कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम, एंड इट मींस वी आर टू कंपेयर 1 माइनस n टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू. यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 माइनस n वुड बी इक्वल टू 0 इन द केस. अगर हम 1 माइनस n का वैल्यू अगर हमारा 0 आ जाता है तभी आंसर क्या आएगा हमारा, सेकेंड inverse. It means n must be equal to 1. अगर हम n का वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं तभी तो 1 minus 1 is equal to 0 आएगा और आंसर हमारा सेकेंड इनवर्स आएगा. So the value of n would be 1, and we know that n is the order of reaction. It means it is first order reaction. So like this, by comparing the unit to the formula, we can calculate the order of reaction. So the second one is 1.35 into 10 raised to the power minus 2. Value का हमें कुछ नहीं करना है. What we have to compare? We have to compare the unit. So again the general formula would be same. Mole per liter raised to the power 1 minus 1, and second inverse is equal to mole minus 2 liter square and second inverse. So इनकी कंपैरिजन जब हम करते हैं तो मोल पर कौन सी पावर आ रही है, -2. -2 कब आ सकती है, -2 जो है ये आ रही है किसकी वैल्यू, मोल के ऊपर पावर आ रही है -2, लीटर स्क्वायर आ रहा है, सेकेंड इनवर्स आ रहा है, यानी इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 माइनस n का वैल्यू आ रहा है -2. इट मीन्स n का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 3. It means it is a third order reaction. I think must be clear. Mole per liter raised to the power 1 minus n, second inverse. It means 1 minus n का वैल्यू क्या है, that is -2. ये वैल्यू जब -2 आएगा, ये वैल्यू जब -2 आएगा तभी तो हमारा लीटर स्क्वायर आएगा, मोल -2 आएगा. So 1 minus 1 is having the value -2, so n would be having the value 3. It means it would be the third order reaction. So like this, by comparing the unit we can tell the order of a particular reaction. So like this you have to solve the questions if you would be given the rate constants value. ठीक है, आपको इस तरीके से करना है. Now take the screenshot of this answer, and now we'll switch to the next question. जो second question है आपका, देखिए क्या है, state the order with respect to each reactant. Means you have been given the particular reaction. देखिए आपको एक reaction दे रखी है इस question में, rate law दे रखा है, rate expression दे रखा है आपको, और आपसे पूछा है state the order with respect to each reactant. आपको order each reactant के respect में बताना है, साथ ही साथ आपको क्या बताना है, order of overall reaction बताना है,
एंड देयर आफ्टर यू आर टू टेल द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए 3 चीजें बतानी है, ठीक है। सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यू हैव बीन गिवन 2 रिएक्शंस, आपको 2 रिएक्शंस दी हुई हैं। द फर्स्ट वन इज 2NO plus Br2 gives 2NOBr एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। रेट इज इक्वल टू K NO raised to the power 2 एंड Br2 raised to the power 1। सो सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, स्टेट द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पर्टिकुलर रिएक्टेंट की पावर्स होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना हो तो हमें क्या करना होता है, जो हमारी पावर्स हैं उनका सम, यानी कोफिशिएंट का सम हमें क्या बताता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहली चीज में तो कुछ भी नहीं है, जो हमारी फर्स्ट केस है, आंसर नंबर 2 का फर्स्ट केस जो आ रहा है आपका, अगर आपसे पूछ रहे हैं ईच रिएक्टेंट के लिए ऑर्डर, तो NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, बिकॉज इट इज हैविंग द कोफिशिएंट एज 2। एंड व्हाट अबाउट Br2 रेज टू द पावर 1, तो यहाँ पर ऑर्डर आ गया फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अगर हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करें, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द concentration of reactants, so it is 2 plus 1 is equal to 3. Clear? Now the last thing that is being asked in the question, unit of rate constant। rate constant का यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, अभी हम लोगों ने अप्लाई किया था, मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 minus n and टाइम इनवर्स, so that would be the formula, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर n की वैल्यू क्या लगा देनी है, 3, क्योंकि इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या है, 3। सो आई विल पुट द वैल्यू मोल पर लीटर 1 minus 3 टाइम इनवर्स। सो आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर 1 minus 3 का मतलब -2, इट मींस लीटर स्क्वायर मोल -2 टाइम इनवर्स। सो दैट वुड बी द पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आ गया आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ओके। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड रिएक्शन हमें दे रखी है H2O2 plus 3I ion plus 2H ion gives 2 water molecule plus I3 ion। रेट एक्सप्रेशन दे रखा है, रेट इज इक्वल टू K concentration of H2O2 and concentration of I ion। मीन्स इन बोथ द केसेस अगर हम विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछें तो इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी भी पावर कितनी है, 1। इट मीन्स दोनों ही के रेस्पेक्ट में फॉर बोथ द रिएक्टेंट, फॉर बोथ द रिएक्टेंट ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर वुड बी फर्स्ट ऑर्डर। एंड व्हाट अबाउट ओवरऑल, ओवरऑल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी 1 plus 1 is equal to 2। सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखेंगे, -2। अगर हम यहाँ n की वैल्यू -2 रखते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1। तो देखिए जब आप रख रहे हैं मोल लीटर 1 - 2, क्योंकि n क्या है हमारा, ऑर्डर, ऑर्डर हमने कितना निकाला, ओवरऑल 2 टाइम इनवर्स। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोल -1, क्योंकि 1 - 2 इज इक्वल टू -1 एंड लीटर। तो आंसर आपका आएगा, यानी यूनिट आपकी आएगी लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। सो लाइक दिस, with the help of a particular given reaction you can calculate the overall order of reaction with the help of rate law, and you can also calculate the unit of rate constant like this. So take the screenshot and now let's see the third question. अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा।
लेट्स सी द क्वेश्चन इज फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको दे रखी है जिसके लिए एक पर्टिकुलर डेटा आपको दिया हुआ है। देयर आर 4 एक्सपेरिमेंट डेटा इज गिवन टू यू, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरीके से आपको 4 इंफॉर्मेशंस गिवन है। कंसंट्रेशन ऑफ NO गिवन है, दैट इज मोलर, यानी मोल पर लीटर में दे रखा है। O2 का कंसंट्रेशन गिवन है 4 अलग अलग कंडीशंस में, ठीक है, तो वहां पर वैल्यूज भी आपको क्या दे रखी है, मोलर में यानी मोल पर लीटर में दे रखी है। एंड इनिशियल रेट ऑफ फॉर्म्ड NO2, ठीक है, जो NO2 प्रिपेयर हो रहा है, रिएक्शन क्या दे रखी है, 2NO plus O2 gives 2NO2। तो NO2 जो फॉर्म हो रहा है उसका इनिशियल रेट आपको गिवन है 7.2 into 10 raised to the power minus 2। इस तरीके से चारों एक्सपेरिमेंट के लिए वैल्यू गिवन है। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इन द केस, फाइंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड O2। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कैलकुलेट करना है। द नेक्स्ट थिंग इज राइट रेट लॉ एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको इसके लिए रेट लॉ लिखना है। जब आपको जो है विद रेस्पेक्ट टू NO और O2 अगर रेट ऑर्डर पता चल जाएगा तो उसके बेसिस पे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और उसके बाद ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं। फाइनली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, यानी K का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। सो दीज इंफॉर्मेशंस आर गिवन टू अस। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। किस तरीके से हमें करना है, देखिए इन 4 एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम 4 इक्वेशंस फ्रेम कर सकते हैं। व्हाट वी नो दैट रेट इज इक्वल टू K, रेट इज इक्वल टू K फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं सो कंसंट्रेशन ऑफ NO पर डिपेंडेंसी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ O2 पर डिपेंडेंसी होगी। नाउ वी डोंट नो द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू दीज 2 रिएक्टेंट, तो इसको मैं x मान सकती हूँ, इसको मैं y सपोज कर सकती हूँ। सो ऑन द सेम बेसिस आई कैन फ्रेम 4 इक्वेशंस। मैं 4 इक्वेशंस यहाँ पर बना सकती हूँ, ठीक है। रेट मुझे दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन के लिए 7.2, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है 7.2 into 10 raised to the power minus 2 is equal to K NO raised to the power x O2 raised to the power y। ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन हो जा रही है मेरी 6.0 into 10 raised to the power minus 3 is equal to K NO raised to the power x O2 raised to the power y। that would be the equation 2। The third one is 2.88 into 10 to the power minus 1 is equal to K NO raised to the power x and O2 raised to the power y। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 3। एंड लास्ट इक्वेशन 2.40 into 10 raised to the power minus 2 is equal to K NO raised to the power x O2 raised to the power y, equation 4। So first of all what we have to calculate is find order with respect to NO and O2। हमें ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए इस x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी सबसे पहले हम इन x और y की वैल्यू पता लगाएंगे। उसके लिए हम किन्हीं भी 2 इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। इफ आई सी दीज 2, सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करूं और फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूं, I may divide equation 4 to equation 2। अगर मैं equation 4 को 2 से डिवाइड करूं तो आप इजीली देख पा रहे होंगे इन वैल्यूज के थ्रू कि मैं आसानी से आंसर कैलकुलेट कर सकती हूँ। I can easily calculate the answer। तो मैं यहीं पे कैलकुलेट करने की कोशिश करती हूँ। 4/2 फोर्थ इक्वेशन ये है मेरी, दैट इज 2.40 into 10 raised to the power minus 2 is equal to K NO raised to the power x और O2 raised to the power y अपॉन ये वैल्यू है मेरी 6.0 into 10 raised to the power minus 3 is equal to K NO raised to the power x and O2 raised to the power y। ठीक है, इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। सो जब हम 4/2 करते हैं, 4/2 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा
वैल्यू क्या आ जाना चाहिए हमारा वैल्यू, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। देख पा रहे हैं आप? सो व्हाट वैल्यू आर यू गेटिंग इन द केस इज 4। ये वैल्यू आ रही है हमारी, k से हमारा k कैंसिल हो जा रहा है। नाउ no raised to the power x and o2 raised to the power y is there. So what value are we getting in the case is 4. In the case we are getting the value as 4. So here we are getting the value as 4. Now इनका कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। So as we have been given the molarity also, यहाँ पर हमें इन दोनों के concentrations भी दे रखे हैं, तो it is better to put the values over here accordingly. ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, accordingly value put कर सकते हैं। So here we'll put the values also as 0.3 यहाँ पर दे रखी है, 0.2 and 0.1 and 0.1 over here, 0.3, 0.4 here and 0.4, और ये वैल्यू क्या हो गई हमारी 0.1। देखिए इससे और इजी हो जाता है हमारा कंपैरिजन। ये वैल्यूज तो कंपैटिबल थी ही थी, साथ में अगर हम इनको नोटिस करें 4 को और 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। यानी अगर मैंने यहाँ पर 4 की वैल्यू लिख दी है 0.4 and 1, यहाँ पर भी वैल्यूज 2 की क्या है 0.1 and 0.1, इन दोनों का कंसंट्रेशन, तो y की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। एंड व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर, जब हम इनको डिवाइड करेंगे सो व्हाट वी आर गेटिंग, दैट वुड बी डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा एंड 4/1 मींस 4, यानी कंसंट्रेशन ऑफ NO इज 4 raised to the power x। ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है 4, इट मींस x की वैल्यू क्या हो गई 1। सो इन द केस व्हाट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x as 1। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। हम y की वैल्यू पता कर सकते हैं, उसके लिए हम मान लीजिए कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सेकंड और फोर्थ का कर लिया, थर्ड और फर्स्ट रह गया हमारा, तो 3/1 करेंगे और उसमें साथ में x की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो 3/1 करने के लिए जब मैं इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर रही हूँ फर्स्ट से, तो व्हाट आई एम गेटिंग 2.88 into 10 raised to the power -1 upon 7.2 into 10 raised to the power -2, yes, is equal to, अब k से k कैंसिल हो जाना है यहाँ आपका, एंड थर्ड है मेरी ये वाली, इट मीन्स 0.3, ठीक है, x की वैल्यू 1 रहने देते हैं एंड आफ्टरवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ O2 as 0.4 एंड 1 के केस में क्या दे रखा है मुझे, दिस इज ऑफ थर्ड एंड दिस इज ऑफ 1, 0.3 और 0.2 raised to the power y, जो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमने 1 वैल्यू लगा दिया, k से k कैंसिल हो गया, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 raised to the power y, ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए ये 4 टाइम्स जा रहा है हमारा, और ये पावर भी हमारी एडजस्ट हो जा रही है। तो इसको पूरे को जब आप कट करते हो तो यहाँ वैल्यू आ रही है 4 इज इक्वल टू 2 raised to the power y, यहाँ लिख देती हूँ मैं, so that is 4 is equal to 2 raised to the power y। इसका मतलब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो किस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 raised to the power 2 is equal to 2 raised to the power y, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, that is 2। So now what we are getting, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, फाइंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO एंड O2। तो NO के रेस्पेक्ट में यानी x की वैल्यू आ रही है मेरी 1 और y की वैल्यू यानी O2 के रेस्पेक्ट में मेरा ऑर्डर क्या आ रहा है 2। इट मींस NO के रेस्पेक्ट में क्या आया ऑर्डर 1 और O2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आया मेरा 2। दूसरा आपसे पूछा इन्होंने राइट रेट लॉ। अब जब मुझे दोनों का ऑर्डर पता चल गया तो मैं रेट लॉ कैलकुलेट कर सकती हूँ, रेट लॉ लिख सकती हूँ। रेट लॉ क्या था, यही तो था जो यहाँ पर लिखा हुआ था। व्हाट वाज दैट, रेट
इज इक्वल टू के NO के रेस्पेक्ट में मेरा ऑर्डर कितना आया 1 और O2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया मेरा 2। तो ये क्या हो गया हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट अबाउट ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया मेरा 1 + 2 = 3। इसके बेसिस पे यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपसे पूछी हो, पर पूछी नहीं है। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, ये सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, यानी k का वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम k का वैल्यू आप किसी के भी थ्रू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी एक पार्ट में लगा देते हैं। मान लीजिए मैंने यही वाला ले लिया फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो k = व्हाट, k = रेट अपॉन NO raised to the power 1 and O2 raised to the power 2। इसमें वैल्यू लगा दीजिए। रेट का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, दैट इज 7.2 × 10 raised to the power -2 अपॉन NO का इसमें कंसंट्रेशन दे रखा है 0.3 और O2 का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.2। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 0.2 raised to the power क्या लगा दोगे आप 2, तो ये वैल्यू हमारी, इसको कैलकुलेट करेंगे अगर हम डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट कर देते हैं तो दो अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ जाएगा। सो हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में वैल्यू रख के k का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स जब आप कैलकुलेशन करोगे you'll be getting the answer as 6। ठीक है, एंड यूनिट यू आर टू मार्क थर्ड ऑर्डर की यूनिट आप कैलकुलेट करोगे। थर्ड ऑर्डर की यूनिट, क्योंकि आप जब k का वैल्यू यहाँ पर लगाओगे, जो भी वैल्यू आपका आता है उसके साथ आपको यूनिट लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो वी नो द जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लिटर 1 - n की वैल्यू क्या है हमारी 3। ठीक है, एंड टाइम इनवर्स, क्योंकि हमें यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो मोलर मिनट इनवर्स में दे रखी है रेट की, तो जो हमारा यहाँ टाइम आएगा वो भी क्या होगा, मिनट इनवर्स होगा। नाउ ऑर्डर मेरा था 3, तो ये वैल्यू मेरी क्या आ गई, लीटर स्क्वायर, यानी जो भी मेरा आंसर आएगा उसकी यूनिट आएगी लीटर स्क्वायर, मोल -2 एंड मिनट। ठीक है, so like this you can calculate the rate constant in these type of questions। so you just do practice of this type of question also। तो इन तीनों तरीके के questions की practice करेंगे and आगे देखते हैं। next question is, so your next question is the rate constant of a reaction of zero order in A is 0.0030 mole liter inverse second inverse, how long will it take for the initial concentration of A to fall from 0.10 m to 0.075 m। So in the case what you have been given, you have been given the value of the rate constant in the case, ठीक है, for a zero order reaction। ठीक, how long will it take, you are asking for the time for the initial concentration of A। ठीक है, that is a reactant, इसका initial concentration कितना है 0.10 m and it is being fall from 0.10 m to 0.075 m, means that is the concentration of A after time t। so for the zero order reaction हम लोगों ने क्या फॉर्मूला प्रूफ किया था, the formula was K is equal to A0 minus AT upon T, या आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, T is equal to A0 minus AT upon K। that was the formula for zero order reaction। किसके लिए था, zero order reaction के लिए। now because हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ टाइम कैलकुलेट करना है। A0 क्या था हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, the concentration at time 0 and at a particular time t we are having the concentration as AT। ठीक है, after time t concentration क्या हो जा रहा है हमारा 80 and K is the rate constant।
सो यू हैव बीन गिवन द वैल्यू फॉर द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के लिए आपको वैल्यू दे रखा है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी ए नॉट का वैल्यू गिवन है और इट फॉल्स टू दिस वैल्यू मींस एटी का वैल्यू गिवन है। सो नाउ व्हाट यू आर टू डू, सीधे सीधे आपको वैल्यूज पुट करनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन अपॉन यू आर टू पुट द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपको गिवन है and simply you are to solve it and calculate the value of T। और क्योंकि यहाँ पर यूनिट क्या दे रखी है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सो जो आपका आंसर आएगा उसका यूनिट क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। सो लाइक दिस सिंपली यू आर टू पुट द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -3 सेकंड इनवर्स। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या दे रखा है, रेट दे रखा है आपको 10 रेज़ टू द पावर -3, रेट कांस्टेंट का वैल्यू, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 10 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस 2.5 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर भी क्या पूछा है, टाइम कितना लगेगा 10 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट को रिड्यूस होने में, कितना रिड्यूस होने में 2.5 ग्राम, रिड्यूस होके कितना रह जाए बचा हुआ अमाउंट 2.5 ग्राम। तो पहली बात तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, the formula was K is equal to 2.303 upon T। अगर आपको याद हो, जो कि आपको याद होना चाहिए, that was log A upon A minus X। ठीक है, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, A नॉट अपॉन AT भी लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो ये वैल्यू क्या है हमारी, A नॉट अपॉन AT भी कह सकते हैं इसको, A अपॉन A माइनस x भी कह सकते हैं। नाउ व्हाट वी आर टू डू, हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। k का वैल्यू हमें गिवन है तो हम t को यहाँ लिख सकते हैं और k को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेश्चन, पहली चीज तो नजर आ रही है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, बट इन द केस यहाँ पर जो हमें वैल्यूज दे रखी है 0.10 m टू 0.075 m, ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है। फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम, इस वैल्यू से इस वैल्यू तक जाने की बात हो रही है, यानी ये हमें दे रखी है 80 की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन तो 10 ग्राम दे रखी है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 10 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हो गई 10 ग्राम टू रिड्यूस 2.5 ग्राम। ये हमारी 80 की वैल्यू नहीं है, मतलब ये हमारी 80 की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 80, लेकिन ये x का वैल्यू नहीं है। आर यू गेटिंग दैट? हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं ना, a अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पर हमारा a क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जो हमारे x होते हैं वो क्या होते हैं, द मोल डिसोसिएटेड, और a माइनस एक्स पूरा क्या होता है, आफ्टर टाइम t वैल्यू क्या हो रही है। ठीक है, तो 80 की वैल्यू तो ये है, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप इस रिएक्शन को, इस रिप्रेजेंटेशन को a माइनस एक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो 2.5 ग्राम x का वैल्यू नहीं है, दैट यू आर टू रिमेंबर। हमारे पास ये वैल्यू क्या आ रही है, बची हुई वैल्यू आ रही है, यानी पूरी की पूरी 80 की वैल्यू आ रही है। क्लियर हो रही है? यहाँ कंफ्यूजन नहीं होता है क्योंकि यहाँ सीधे हम 80 लगाते हैं, बट यहाँ हम जब याद करते हैं तो a अपॉन a माइनस एक्स के फॉर्म में याद करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है ये 2.5 ग्राम यहाँ x नहीं है, ये इस a माइनस एक्स का पूरा वैल्यू है, यानी रिड्यूस होकर वो कितना रह जाए 2.5 ग्राम, यानी पूरी वैल्यू आ रही है ये। सो अब तो कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। k का वैल्यू हमें दे रखा है 10 रेज़ टू द पावर -3, लॉग a का वैल्यू दे रखा है हमें 10 और a माइनस एक्स का वैल्यू दे रखा है 2.5। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4, log 4 हो जाएगा, और हमें पता है हम log 4 को किस फॉर्म में और लिख सकते हैं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम 2.303 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, ये ऊपर ले जाओगे तो 10 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 log 2। log 2 का वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं।
ठीक है, तो log 2 का वैल्यू क्या होता है 2 इंटू 0.3010, तो ये हमारा आ गया 2.303 इंटू 10⁻3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, वी वुड बी गेटिंग द टाइम, हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, यानी सेकंड वुड बी द आंसर। हियर आल्सो सेकंड वुड बी द आंसर, सेकंड इनवर्स नहीं आएगा, ठीक है, रेट नहीं है, टाइम है, सो व्हाट वी आर गेटिंग सेकंड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So your next question is, show that in case of a first order reaction, the time required for 99.9% of the reaction to take place is about 10 times than that required for half the reaction. ठीक है, अगेन लिसन द क्वेश्चन, आपको ये प्रूव करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है 99.9% ऑफ द रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, दैट इज 10 टाइम्स, यानी T ऑफ 99.9% या T ऑफ 99.9 इज इक्वल टू 10 टाइम्स देन दैट ऑफ T हाफ, दैट यू आर टू प्रूव। ठीक है, ये आपसे प्रूव कराया। सो हम क्या करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। टी हाफ हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैल्यू कितनी आती है 0.6932 अपॉन के। सो इसको दोबारा से प्रूव करते हैं। टी हाफ या हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड वो होता है जब हमारी रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो चुकी होती है, यानी 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है वो हमारा टी हाफ कहलाता है। ठीक है, सो इफ वी आर टू कैलकुलेट द टी हाफ, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट वुड बी T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब अगर मुझे टी हाफ कैलकुलेट करना हो तो टी हाफ के लिए मेरी रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो चुकी है, यानी अमाउंट जो लेफ्ट है वो हाफ है। तो इनिशियल अमाउंट का, यानी इनिशियल अगर मेरा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का A है तो A माइनस एक्स की वैल्यू A/2 लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट, या 50% कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब x का वैल्यू डिसोसिएटेड जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आ जाएगी A/2, या तो डायरेक्ट इसका पूरा वैल्यू A/2 लिख सकते हो आप। ठीक है, या फिर A माइनस A/2 लिख सकते हो आप। So what you are getting 2.303 अपॉन के लॉग, ये वैल्यू अब कितनी बचेगी, A माइनस A/2 इज A/2, A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, यानी A अपॉन A/2, so what we are getting log 2। ठीक है, so 2.303 अपॉन के लॉग 2 हमारा यहाँ पर वैल्यू आ रहा है। ओके, ये हो गई हमारी टी हाफ की वैल्यू। इसी तरीके से अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम T 99.9 कैलकुलेट करेंगे, यानी T 99.9% का मतलब क्या हुआ कि हमारी रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो चुकी है। सो T 99.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A। अगर मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन A है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 99 सॉरी ये परसेंटेज में दे रखी है आपको वैल्यू, तो x का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट वुड बी 99.9 अपॉन 100। ठीक है, सो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो यू वुड बी गेटिंग 0.999। ठीक है, सो व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज ऑफ A, क्योंकि यहाँ हम इसको A मान के चल रहे हैं। सो 0.999 A आ जाएगी वैल्यू। अब आप जब A में से 0.999 A को माइनस करोगे, व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग, यू वुड बी गेटिंग 0. यानी यू वुड बी गेटिंग log A अपॉन 0. ये आप अगर 1 में से माइनस कर रहे हो तो ये आपका क्या बच रहा है 0. सो 0.001A। ठीक है, इसको मैं डेसिमल को रिमूव करती हूँ, सो आई वुड बी गेटिंग 1000।
यानी इसको मैं 10 रेज टू द पावर 3 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। आई एम गेटिंग T99.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 10 रेज टू द पावर 3। इसको मैं 3 log 10 भी मेंशन कर सकती हूँ, ठीक है। सो आई कैन मेंशन ओवर हियर एज 3 log 10 रेज टू द पावर 3 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 3 log 10। 3 log 10 का मतलब क्या हो गया हमारा, log 10 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 3। नाउ व्हाट वी आर टू कंपेयर, हमें ये प्रूफ करना है। सो वी आर टू कंपेयर बोथ, यानी मैं यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ T99.9 अपॉन T हाफ इज इक्वल टू, so I am getting 2.303 upon K into 3, and here what I am getting, T half की वैल्यू 2.303 upon K, जो कि आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल, एंड log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010, ठीक है। सो इफ I am gonna calculate it, अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो what I am getting 10। इन दोनों को कैलकुलेट करने पे क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, सो T99.9 इज इक्वल टू T हाफ, इसको इधर ले जाएं, इनटू, सो दैट इज बीइंग प्रूव्ड कि इफ वी कंपेयर we can show that in case of a first order reaction, the time required to complete 99.9% of the reaction to take place is about 10 times than that of the half life period. So like this you can compare two cases. इस तरीके का क्वेश्चन कोई और भी अगर आपको आ जाता है, मान लीजिए 70% और हाफ लाइफ में रिलेशनशिप के लिए, 75% हाफ लाइफ में रिलेशनशिप के लिए, so like this you are to solve it. So first take the screenshot. बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नाउ वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is found to have rate constant K is equal to 5.5 into 10 raised to the power minus 14 second inverse, find half life, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हम लोगों ने अभी भी कैलकुलेट किया। अगर इसको मैं पूरा कैलकुलेट करती तो यहाँ पर वैल्यू आती 0.3010, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूले में क्या आ जाता, टी हाफ इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन, ये आपको लर्न हो गया होगा अब तक। मैंने कहा बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो सीधे फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आराम से कर सकते हो। तो यहाँ इन केस आपको क्या करना है, बस k की वैल्यू ये लगा देनी है 5.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 14। टी हाफ का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। टी हाफ आप कैलकुलेट करेंगे एंड यू विल मेंशन द यूनिट एज सेकंड, क्योंकि यहाँ पर सेकंड इनवर्स दे रखा है टाइम, ठीक है। सो लाइक दिस यू आर टू डू द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस कीजिए इसकी अच्छे से, और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रैक्टिस फॉर some other type of numerical questions. Thank you.